request you to remain standing for the national song and the national anthem. I request everyone present in the hall to take their respective seat. May I have the honor of requesting our chief guest, Shri Jagat Prakash Nadda ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, Government of India. Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Higher Education and Health Minister of Uttarakhand, Dr. Dhan Singh Rawat ji, Honorable President of the University, Dr. Vijay Dhasmana ji, Honorable Vice Chancellor, Dr. Rajendra Dubal ji, Dr. Ashok Diorari ji, Pro Vice Chancellor, and Dr. Vijayendra Chauhan ji, Director General Academic Development, to kindly light the lamp of the convocation ceremony.
मैं अपने दोनों सांसदों श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी व श्री महेंद्र भट्ट जी से गुजारिश करता हूं कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। एक उधर लगाओ। May I have the honor of requesting our chief guest, Shri Jagat Prakash Nadda ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, Government of India, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Higher Education and Health Minister of Uttarakhand, Dr. Dhan Singh Rawat ji, Honorable President of the University, Dr. Vijay Dhasmana ji, Honorable Vice Chancellor, Dr. Rajendra Dubal ji, Dr. Ashok Dharari ji, Pro Vice Chancellor of the University, and Dr. Vijendra Chauhan ji, Director General Academic Development, to kindly light the lamp of the convocation ceremony. त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, महेंद्र भट्ट है। महेंद्र भट्ट जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। दो जो भी बुलाए हैं ना। नाम लेना है क्या? मैडम ने बुलाया, मेरे को नॉर्मल। तो हो गया, ठीक है। I'll now request the students to present the Kulgeet of the university. ज्योति जयति कुलभूमि महा, ज्योति जयति कुलभूमि महा, स्वामी राम राम अमृत चिंतन, स्वामी राम राम अमृत चिंतन, कर जगत का नित्य कल्याण, ज्योति जयति कुलभूमि महा। इन शिखरों से मेरे शुभ्रता, गंगा सी पाए निर्मलता, इन शिखरों से मेरे शुभ्रता, गंगा सी पाए निर्मलता, देवभूमि की मन में ममता, देवभूमि की मन में ममता, जन जन का
जयति जयति कुल भूमि महा स्वामी राम का अमृत चिंतन स्वामी राम का अमृत चिंतन मेरे जगत का नित्य कल्याण जयति जयति कुल भूमि महा निवासी हो धर्म हमारा यंत्र कुशलता कर्म हमारा नित्य निवासी हो धर्म हमारा यंत्र कुशलता कर्म हमारा स्वस्थ राष्ट्र हो मर्म हमारा स्वस्थ राष्ट्र हो मर्म हमारा धर्म नीया स्वर्ग समान जगि जयति कुल भूमि महा जगि जयति कुल भूमि महा स्वामी राम का अमृत चिंतन स्वामी राम का अमृत चिंतन करे जगत का नित्य कल्याण जगि जयति कुल भूमि महा आए थे जो जग में तपने स्वामी राम हो प्रेरक अपने आए थे जो जग में तपने स्वामी राम हो प्रेरक अपने पूर्ण करे हम उनके सपने पूर्ण करे हम उनके सपने उनका चिंतन लक्ष्य महा जगि जयति कुल भूमि महा जगि जयति कुल भूमि महा स्वामी राम का अमृत चिंतन स्वामी राम का अमृत चिंतन करे जगत का नित्य कल्याण जगि जयति कुल भूमि महा 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 I now request the Honorable President Dr. Vijay Thasmana ji to please felicitate the Chief Guest Shri Jagat Prakash Nadda ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, Government of India. May I request Honorable Vice Chancellor Dr. Rajendra Dubal ji to felicitate Shri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Chief Minister of Uttarakhand.
May I request Honorable Director General Academic Dr. Vijendra Chauhan ji and Honorable Pro Vice Chancellor Dr. Ashok Diurari ji to felicitate Dr. Dhan Singh Rawat ji, Honorable Higher Education and Health Minister of Uttarakhand. महेंद्र भट्ट जी को सर करेंगे, उधर बीसी करेंगे। क्या महेंद्र भट्ट जी को प्रेसिडेंट सर करेंगे। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। I'll now request Honorable President Dr. Vijay Dasmana ji to felicitate Dr. Mahendra Bhatt. और कौन करेगा? बीसी सर देवेंद्र सिंह। Now, I'll request Honorable Vice Chancellor Dr. Rajendra Dubal ji to felicitate Mr. Trivendra Singh ji. May I now request Honorable President of the University, Dr. Vijay Dasmana ji, to please declare the convocation open. I declare the convocation of Swamiram Himalayan University open. I'll now request Honorable Vice Chancellor Dr. Rajendra Dubal ji to deliver the welcome address. आप सबको शुभ प्रभात और बधाई। इस सम्मानीय और गरिमापूर्ण कॉन्वोकेशन के मुख्य अतिथि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन उर्वरक मंत्री हैं भारत सरकार के, आपका स्वागत है। माननीय अति विशिष्ट अतिथि श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। माननीय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो शिक्षा स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री हैं उत्तराखंड के। आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय दसमाना, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। मेरा ये सौभाग्य भी है कि हमारे बीच में दो और विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो सांसद हैं यहाँ के और मुख्यमंत्री भी रहे उत्तराखंड के, और एक समय में मेरे भी मंत्री रहे हैं। माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी, जो सांसद हैं। हमारे स्थानीय विधायक श्री बृजभूषण गैरोला साहब भी यहाँ पर हैं। मंच पे उपस्थित समस्त विशिष्ट अतिथिगण, सदस्य व्यवस्थापक मंडल, प्रबंध मंडल, विद्या परिषद, संकाय सदस्यगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, अतिथिगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय स्नातक साथियों, मैं स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय जौहरी ग्रांट देहरादून के 8वें दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बताने में हर्ष है कि आज विश्वविद्यालय द्वारा 1001 विद्यार्थियों को डिग्री, 31 मेधावी विश्वविद्यालयों को अकादमी अवार्ड
2 विद्यार्थियों को बेस्ट ग्रेजुएट तथा 14 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह गर्व का क्षण है, उपलब्धियों की पराकाष्ठा का क्षण है एवं नए आरंभ का भी क्षण है। आज हम केवल उपलब्धियां प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि शिक्षा, सेवा और नवाचार की भावना का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय की पहचान है। गत वर्ष विश्वविद्यालय ने अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया है। 5000 से अधिक अध्ययनरत विद्यार्थियों को 500 से अधिक शिक्षकों, 56 विभागों तथा 85 से अधिक स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी कार्यक्रमों के साथ विश्वविद्यालय ने एक सशक्त और जीवंत शैक्षणिक समुदाय का निर्माण किया है। लगभग 200 एकड़ में फैला यह पर्यावरण से अनुकूल हरा भरा परिसर है। इसमें 1200 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, 2500 बिस्तरों का कैंसर केयर एवं रिसर्च सेंटर, आईसीटी सक्षम कक्षाएं, भव्य सभागार एवं आधुनिक खेल परिसर, ये सभी मिलकर इस विश्वविद्यालय को समग्र शिक्षा का एक प्रकाश स्तंभ बनाते हैं। हिमालयन अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रोगियों को प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता के लिए विगत लगातार 5 वर्षों से आयुष्मान गोल्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहा है। मुझे यह बताने में हर्ष है कि एसआरएचयू को एनआईआरएफ रैंकिंग में 100 से 150 के बैंड पर रखा गया है। हम नैक A+ एक्रेडिटेशन की विश्वविद्यालय हैं। ये उपलब्धियां उस शिक्षा में उत्कृष्टता और गुणवत्ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है। हमारा अस्पताल NABH और NABL से भी मान्यता प्राप्त है, जो समाज को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को भारत के राष्ट्रीय मेडिकल आयोग तथा मेडिकल शिक्षा प्रौद्योगिकी में क्षेत्रीय केंद्र भी डिक्लेयर किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय ने BSc फूड साइंस और टेक्नोलॉजी तथा MSc योग थेरेपी जैसे नए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और बैचलर ऑफ फार्मेसी कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता का विस्तार किया है। अब स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको क्यूएट कहा जाता है, के माध्यम से हो रहा है। हमारे विद्यार्थी निरंतर विश्वविद्यालय का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ की छात्रा दीक्षा पोखरियाल ने MSc नर्सिंग की छात्रा जो है वो जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकोबा में GST सुकुरा साइंस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रतिष्ठित शोध कार्यक्रम में भाग लिया। उनकी यह उपलब्धि हमारे बढ़ते वैश्विक शैक्षिक प्रभाव एवं SRHU की प्रतिभा को विश्व पटल पर दर्शाती है। मैं यहाँ पर ये भी बताना समझता हूँ कि हमारे जो MOUs है, ये हार्वर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सुकुबा यूनिवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उन विश्वविद्यालयों के साथ शोध एवं उच्च शिक्षण का प्रशिक्षण के लिए लगातार प्रयासरत हैं और कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में स्वयं को एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया है। DSIR द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साथ साथ विश्वविद्यालय ने रिसर्च अवार्ड पॉलिसी भी लागू करी है, जिसमें पब्लिकेशन एवं इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलता है। हाल ही में उद्घाटित अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर SRHU इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर में विद्यार्थियों में उद्यमिता और रचनात्मकता को बढ़ावा दे रहा है। अनुसंधान विश्वविद्यालय के मिशन का एक प्रमुख स्तंभ है, क्योंकि विश्वविद्यालय ज्ञान सृजन एवं सामाजिक प्रभाव के लिए समर्पित है। वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय ने स्कोपस वेब ऑफ साइंस में सूचीबद्ध उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान प्रकाशन उपलब्ध कराए हैं। हमारे शिक्षक भारत सरकार के कई फंडिंग एजेंसी जैसे ICMR, DHR, DST और राज्य के जो प्रतिष्ठान हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल है, वहाँ से भी हमारे यहाँ पे काफ़ी अनुसंधान परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं और उद्योग से स्पॉन्सर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स एवं कैडेवरिक कार्यशालाएं भी यहाँ पर आयोजित हो रही हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, स्वास्थ्य संस्थाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साझेदारी रखता है। विश्वविद्यालय ट्रांसलेशनल रिसर्च पर बल देता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य चुनौतियों, सार्वजनिक
स्वास्थ्य समस्याओं, पर्यावरणीय चिंताओं एवं तकनीकी नवाचार का समाधान है। पेटेंट, नवाचार आधारित परियोजनाओं एवं उद्योग सहयोग विश्वविद्यालय के व्यावसायिक एवं सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। छात्रों को शोध परियोजनाएं, सम्मेलन एवं प्रकाशन अवसरों के माध्यम से अनुसंधान पद्धति में मार्गदर्शन दिया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा स्किल और सिमुलेशन एवं एडवांस्ड कैडेवरिक लैब स्थापित की गई है, जो कि उत्तर भारत की अपने प्रकार की एक अनूठी पहल है। विश्वविद्यालय द्वारा एआई एवं डेटा इंसाइट्स, कैंसर बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एवं एडवांस्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ साथ आधुनिक डायग्नोस्टिक क्लिनिकल ट्रायल्स केंद्र स्थापित किए गए हैं। एसआरएचयू द्वारा किए गए कोलैबोरेशंस राष्ट्रीय सीमाओं से परे एवं विस्तृत हैं। नेपाल के महापौरों का एक प्रतिनिधिमंडल ने स्प्रिंग सेट प्रबंधन को समझने के लिए विश्वविद्यालय का दौरा किया और विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी हमारे प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताएं जैसे जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ती हैं। ये कोलैबोरेशन हमें यह याद दिलाते हैं कि शिक्षा केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सेतु है। विश्वविद्यालय का मानना है कि शिक्षा केवल करियर ही नहीं, जीवन की दिशा भी निर्धारित करती है। इंटर्नशिप प्रोग्राम, अर्न व्हाइल लर्न स्कीम, जनरेटिव एआई टूल्स के रिस्पॉन्सिबल यूज पॉलिसी तथा मेडिकल हेल्थ एंड वेलबींग पॉलिसी जैसे हमारे प्रयास भविष्य की चुनौतियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, जिसका अभी माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था, कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच और भी विस्तृत हो जाएगी, जिसके माध्यम से भारत और विदेशों में शिक्षार्थियों को ऑनलाइन स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह कदम सुनिश्चित करता है कि भौगोलिक सीमाएं ज्ञानार्जन में बाधा न बने। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में हजारों पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, ई जर्नल्स, डिजिटल रिपोजिटरी, सॉफ्टवेयर एवं टर्निटिन स्कोपस जैसे डेटाबेस की सुविधा उपलब्ध है, जो शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। एसआरएचयू अपने ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा मानवता की सेवा में स्थापित मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए समावेशिता, समुदाय सेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को उत्तराखंड के दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए आगे बढ़ाता है। आरडीआई एवं हिमालयन अस्पताल के माध्यम से मोबाइल मेडिकल सेवाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता अभियान एवं रोकथाम स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिससे हिमालय क्षेत्र के वंचित समुदायों को सुगम एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होती है। एसआरएचयू विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फीस छूट एवं आर्थिक सहायता प्रदान करता है ताकि योग्य छात्र, विशेषतः वंचित समुदायों, दिव्यांग पृष्ठभूमि एवं प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। समान अवसर नीतियां, एंटी रैगिंग उपाय एवं शिकायत निवारण प्रणाली सभी के लिए सहायक एवं समावेशी कैंपस वातावरण सुनिश्चित करती है। स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय एक प्रगतिशील छात्र केंद्रित संस्थान है जो उत्कृष्टता, करुणा, ईमानदारी एवं नवाचार पर आधारित है। सुदृढ़ शैक्षिक प्रणाली, समर्पित शिक्षक, बढ़ते अनुसंधान, उच्च स्नातक परिणाम एवं प्रभावशाली समुदाय सेवा के माध्यम से एसआरएचयू राष्ट्रीय विकास में योगदान देता आ रहा है। प्रिय स्नातक विद्यार्थियों, आज विश्वविद्यालय में आपकी शैक्षणिक यात्रा का समापन और आपके व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवन के लिए नए अध्याय का आरंभ है। जब आप संसार में कदम रखें तो उत्कृष्टता, करुणा और नवाचार के उन मूल्यों का स्मरण रखें जिसका प्रतीक यह विश्वविद्यालय है। परम श्रद्धेय स्वामी जी की विरासत को आगे बढ़ाएं, जिनकी दृष्टि ने हमें ज्ञान को मानव सेवा से जोड़ने की प्रेरणा दी है। विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी तथा आपके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं। आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान, सत्यनिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकाश पुंज बनकर उज्जवल भविष्य रचें। एक बार पुनः मैं इस भव्य समारोह में शिक्षा, उपलब्धि और आशा के उस उत्सव में आप सबका स्वागत करता हूं और नए जीवन में प्रवेश की बधाई देता हूं। एक बार फिर से मैं डायस में समस्त सम्मानित हमारे अतिथिगणों का फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद।
Honorable President will now administer the oath. I request all the degree recipients to rise from their seats. सभी डिग्री रेसिपिएंट प्लीज खड़े हो जाएं। सभी डिग्री रेसिपिएंट प्लीज खड़े हो जाएं। I solemnly pledge myself to the service to humanity. Under any circumstances, I will not use my knowledge contrary to the laws of humanity. I will not permit consideration of religion, nationality, race, party, politics, or social standing to intervene in the serving the humanity. I will act with utmost honesty, integrity, and relentless commitment. I will practice my profession with conscience and dignity. I will strive towards the protection of Mother Nature and will use my knowledge and skills for the well-being of society and the progress of our beloved nation. Thank you. I'll request all the degree recipients to take their respective seats. I'll now invite the Registrar, Commander Challa Venkateshwar, to present all the recipients of the degrees to Honorable President. Honorable President, sir, I have the honor of presenting 1001 candidates for award of degrees in Doctor of Philosophy, Doctorate of Medicine, Master of Chirurgy, Doctor of Medicine, Master of Surgery, Master of Science in Nursing, Nursing Practitioner in Critical Care Postgraduate Residency Program, Master of Hospital Administration, Master of Physiotherapy, Master of Science in Clinical Research, Master of Science in Epidemiology, Master of Science in Medical Anatomy, Professional Diploma in Clinical Psychology, Master of Science in Biotechnology, Master of Science in Microbiology, Master of Business Administration, Master of Computer Applications, Master of Science in Yoga Sciences, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, Bachelor of Science in Nursing, Post-Basic Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology, Bachelor of Optometry, Bachelor of Physiotherapy, BSc Medical Technology Laboratory, BSc Medical Technology Operation Theatre, BSc Medical Technology Radiography and Imaging, BSc Medical Technology Radiotherapy, Bachelor of Science Honours in Biotechnology, Bachelor of Science Honours in Microbiology, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Commerce Honours, Bachelor of Computer Applications, Bachelor of Science Honours in Data Science, Bachelor of Technology, Computer Science and Engineering, Bachelor of Science in Yoga Science and Holistic Health, and Bachelor of Vocation, Culinary Management. Candidates in person, 631. Candidates in absentia, 370. They have successfully completed their respective programs and have been found eligible for the award of their respective degrees. I request you please award their respective degrees to them. All the degree recipients are requested to please rise from their seats. डिग्री रेसिपिएंट खड़े हो जाएं प्लीज। By virtue of the powers vested in me as the President of Swamiram Himalayan University, I confer upon you your respective degrees. I order you that you should prove yourself worthy of the same
I also authorize you to wear the stoles ordained as the insignia of the degree. Thank you. I request all the recipients to take their respective seats. I now request Registrar Commander Venkateshwar to present the recipients of awards and medals before the Chief Guest, Shri Jagat Prakash Nadda ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare and Chemical Fertilizer, Government of India. Honorable Chief Guest, sir, I have the honor of presenting the recipients of medals and awards of the university. May I request the Honorable Chief Guest, sir, to please honor the recipients with their respective medals and awards. Ms. Aishi Belwal, BSc Nursing, Batch 2021. Dr. Ishan Gupta, MBBS, Batch 2019. These were the recipients of Dr. Swamirama Best Graduate Award. Now, recipients of medals in various programs, academic toppers, Mr. Deepanshu, MSc Nursing, Batch 2023. Ms. Purnima Pant, NPCC, Postgraduate Residency, Batch 2023. Ms. Ankita Rawat, Master of Hospital Administration, Batch 2023. Ms. Reena Sajjad, Master of Physiotherapy, Batch 2023. Ms. Ruchika Tapliyal, MSc Clinical Research, Batch 2023. Mr. Siddhesh Jhaneshwar Kolamka, MSc Epidemiology, Batch 2023. Ms. Priyanka, Professional Diploma in Clinical Psychology, Batch 2024. Ms. Jyoti Rawat, MSc Biotechnology, Batch 2023. Ms. Simran, MSc Microbiology, Batch 2023. Ms. Anshika Bartwal, Master of Business Administration, Batch 2023.
Mr. Gaurav Lasyal, Master of Computer Applications, Batch 2023. Ms. Bhavna Jha, MSc Yoga Sciences, Batch 2023. Ms. Ayushi Belwal, BSc Nursing, Batch 2021. Ms. Ria, Post Basic BSc Nursing, Batch 2023. Dr. Ishita Gupta, MBBS, Batch 2019. Mr. Paritosh Singh, Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology, Batch 2021. Mr. Harmendra Puguzendi, Bachelor of Physiotherapy, Batch 2020. Ms. Asta Dang, BSc Medical Technology Laboratory, Batch 2021. Ms. Mansi Devi, BSc Medical Technology, Operation Theatre, Batch 2021. Ms. Naina, BSc Medical Technology, Radiography and Imaging, Batch 2021. Ms. Pooja Jha, BSc Medical Technology, Radiotherapy, Batch 2021. Ms. Simran Parmar, BSc Honours Biotechnology, Batch 2022. Mr. Vedansh Pundir, BSc Honours Microbiology, 2022. Ms. Roma Bist, Bachelor of Business Administration, 2022. Ms. Sanya Nagpal, Bachelor of Commerce Honours, Batch 2022. Ms. Madhika Rawat, Bachelor of Computer Applications, Batch 2022. Ms. Yashashvi Kapil, BSc Honours Data Science, Batch 2022.
Mr. Subham Negi, BTech CSE, batch 2021. Ms. Gargi Pal, BSc Yoga Science and Holistic Health, batch 2021. She's repeat. Ms. Aishi Belwal, BSc Nursing, batch 2021. Thank you, sir. May I now request Honorable Higher Education and Health Minister, Uttarakhand, Dr. Dhan Singh Rawat ji, to please bless the recipients. भारत माता की, भारत माता की। हम सबका सौभाग्य है कि स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय का ये 8वां दीक्षांत समारोह आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है और आज इस गरिमय और बहुत अच्छे दीक्षांत समारोह में आज देश के स्वास्थ्य मंत्री और अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक रहे हैं और हम सबके मार्गदर्शक भी हैं और उत्तराखंड के प्रति आपका अगाध प्रेम और लगाव भी रहता है। हम जब भी आपके पास मुख्यमंत्री जी हम जाते हैं तो उत्तराखंड के लिए कोई भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम कोई भी डिमांड करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई कुछ और ले जाओ, तो एक बार सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, हमारे बीच में यहाँ के हमारे सांसद जी हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हमारे माननीय विधायक जी भी हैं और विशेषकर हम सब लोग जिनके निमंत्रण पे यहाँ पे आ रखे हैं, हमारे बड़े भाई विजय धस्माना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जब भी दीक्षांत समारोह होता है तो हम सब लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं। माननीय कुलपति जी, कुल सचिव जी और प्यारे बच्चों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, हम सब लोग चूंकि मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज उत्तराखंड राज्य में हमारे 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, 4 हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और मैं माननीय नड्डा जी का देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में कुछ तकनीकी कारण से हमको दिक्कत आ गई थी और हम ये लग रहा था कि हमारा मेडिकल कॉलेज शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब मैं आपके पास गया तो उन्होंने कहा कि आप अपील करिए इस पे, और जब हमने अपील की तो आपने उसी साल हमको मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी है और मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई बहनों, आज यहाँ पे 1000 से ज़्यादा बच्चों को डिग्री दी गई है। कुछ बच्चे अभी डिग्री पाए हैं, कुछ को अभी फिर सेकंड सत्र में दी जाएंगी। मैं कह सकता हूँ कि जब से देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला और जब से देश में आयुष्मान योजना आई, आज हर गरीब का इलाज आयुष्मान में हो रहा है और हिमालयन विश्वविद्यालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के मेडिकल कॉलेज को भी, कि यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा लोगों का अभी तक जो है इलाज आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क हो रहा है और किया जा रहा है। पर डे यहाँ पे लगभग 2500 लोगों का इलाज पर डे होता है और मैं देखता हूँ कि जब भी हमारे राज्य में आपदा आती है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है,
कई गरीब आदमी का इलाज करना होता है तो हम धसमाना जी को फोन करते हैं, हम सब लोग विधायक जी भी बैठे, हम एक फोन करते हैं, कहते हैं भाई साहब ये इलाज करना है इनका। कई गरीब लोगों का आप इलाज भी निःशुल्क कराते हैं। तो मैं एक बार अपनी ओर से, सरकार की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी आपने जब उत्तराखंड में आपदा आई तो 51 लाख आपने मुख्यमंत्री राहत कोष को भी दिए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारा जो विश्वविद्यालय है वो छात्रों की पहली पसंद बन चुका है और मैं देख रहा हूं कि यहाँ देश विदेश के और पूरे भारत के हर राज्य के छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। और एक बार मैं सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आगे बढ़े, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और हिमालयन परिवार का भी, विशेषकर आज के मुख्य अतिथि माननीय नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो भी देवभूमि से, हिमाचल प्रदेश से हैं और हम उत्तराखंड से हैं। और मैं कहता हूं कि माननीय नड्डा जी जब हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री थे तब आपने हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दी जा सके, आपने उस नींव को रखा है और अब आप भारत सरकार में मंत्री हैं। और मैं आशा के साथ ये कह सकता हूं कि जब भी हम उनके पास जाते हैं वो हमको ज्यादा देते हैं उत्तराखंड को। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you, sir. I'll now request Honorable President Dr. Vijay Dasmana ji to deliver the presidential address and bless the recipients. आप सबके अंदर निहित परमात्मा को प्रणाम करते हुए अपने हृदय की गहराई से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दीक्षांत समारोह के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन व उर्वरक मंत्री सर्वश्री जगत प्रकाश जी नड्डा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित श्री पुष्कर सिंह जी धामी, जिनके पास सभी शिक्षाओं का जिम्मा है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, साथ में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, हमारे सम्मानित मंत्री धन सिंह जी रावत, हमारे क्षेत्रीय सांसद बड़े भाई श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, राज्यसभा में सांसद व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, कुलपति, प्रतिकुलपति, डायरेक्टर जनरल एकेडमिक्स, बीओजी के सभी मेंबर, हमारे विधायक, लोकल विधायक, सभी गणमान्य अतिथि, समय की सीमा है, 10 मिनट हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। डिग्री रेसिपिएंट्स, आपको और आपके परिवार वालों को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। ये आपकी जीत, आज जो मेहनत आपकी है उसका उत्सव यहां मनाया जा रहा है। ये फंक्शन आपका है, विश्वविद्यालय का नहीं है। हम लोग आपके लिए इकट्ठा हुए हैं। सम्मानित, यस, सम्मानित मंत्री जी दिल्ली से सुबह 9 बजे पधार गए थे आपके खुशी में शामिल होने के लिए, इस उत्सव को मनाने के लिए, आपका विजय उत्सव, और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां। 1001 एक ऐसा फिगर है, ऑस्पिशियस फिगर, कि आज 1001 बच्चों को डिग्रियां प्रदान की गई हैं। आज का दिन शुरुआत मांगल गीत से हुआ। जो उत्तराखंड के लोग नहीं हैं यहां पर, उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जब उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई उत्सव होता है, मांगलिक कार्य होता है, तो मांगल गीत गाया जाता है। बच्चों, हमारे स्टाफ ने मांगल गीत गाया। दैणा हुइयां, दैणा हुइयां माने
आशीर्वाद मिले, ईश्वर आपकी कृपा मिले हमको। सभी उत्तराखंड के देवी देवताओं का आह्वान किया गया कि आपकी आज विजय हो रही है, आपके ऊपर कृपा बनी रहे, आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। ये संस्था जिससे आप डिग्री आपको मिली है, अगर आपने अपने ज्ञान के चक्षु खोले रखे होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपको डिग्री मिली है, अगर आपने अपने ज्ञान के चक्षु खोले रखे होंगे, तो हम बार बार बोलते हैं बाबा का मिशन है, रिमेंबर दैट यू हैव टू सर्व विद लव। मोटो है लव, सर्व एंड रिमेंबर। प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू सर्व विद लव। एक ऐसी संस्था जिसमें सभी लोग ट्रस्टी भाव से काम करते हैं, एक पैसा किसी इंडिविजुअल की जेब में नहीं जाता, यहां से संस्था पे लगता है, संस्था का पैसा है, संस्था के काम आएगा, जनता के काम आएगा, लोगों के काम आएगा। संस्था हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके अपना योगदान देती है, चाहे आयुष्मान भारत हो, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो। पिछले 5 सालों में करीब 100 करोड़ रुपए से ऊपर की स्कॉलरशिप बांट चुके हैं हम लोग। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। उस पलायन को कैसे रोका जाए, उन लोगों को पहाड़ों में कैसे रोका जाए, उनको चाहे होम स्टे में ट्रेनिंग करनी हो, चाहे किसानों को प्रोत्साहन करना हो, कैश क्रॉप उगानी हो, पेयजल के ऊपर काम करना हो, आपदा में काम करना हो, हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। माय डिग्री रेसिपिएंट लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हम में से कुछ लोग नहीं रहेंगे, हो सकता है मैं भी रहूं ना रहूं 2047, बट एक संकल्प है और मैं आपसे आह्वान करता हूं कि इस भारत को, इस भारती को विकसित बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आप सबके योगदान की आवश्यकता है। ये कोई एक आदमी नहीं कर सकता, सब लोगों को करना पड़ेगा। जो जहां पर है सफाई कर्मचारी अपना वहां योगदान दे, और जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उनको अपना योगदान देना होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि जब आप आज अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे, कुछ लोग आगे पढ़ाई करेंगे, कुछ लोग नौकरी करेंगे, इस संस्थान का मूल मंत्र अपने साथ लेके जाइए। कलयुग है ये, और कलयुग का राजा राहु है। राहु भ्रमित करता है, राहु की भूख नहीं मिटती है, वो लालची है, जो बहिर्मुखी है ना, दुनिया की चकाचौंध में जो भाग रहा है। अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, अपनी उन्नति करनी है तो अंदर झांकना पड़ेगा। लालच में आदमी कितना गिर सकता है। अभी 3 दिन पूर्व देहरादून की घटना है। क्या एक मां अपने बेटे का मर्डर करवा सकती है? सोचने का विषय है। जब हम देवी की स्तुति करते हैं तो देवी से मांगते हैं, हम बोलते हैं कुपुत्रो जायते क्वचित कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, बच्चे मां बाप को लात मार सकते हैं, मां कुमाता नहीं हो सकती, मां कुमाता नहीं हो सकती। क्यों हो रही हैं? लालच, भूख, आगे बढ़ने की भूख, दूसरे को धक्का मार करके आगे बढ़ने की भूख। ये हमारे लिए सोचने का समय है। सोचिए, एक व्यक्ति की सोच, स्वामी राम जी की एक सोच, 1989 में एक छोटा सा प्रकल्प शुरू हुआ, आज हजारों लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। इस संस्थान की वजह से रोज कम से कम 20,000 घरों में रोटी पकती है। और यह मंच है जिस मंच पर कोई छोटा बड़ा नहीं। अब जब रामलीला यहां हुई थी तब देखते आप,
कि संस्थान में जो मजदूरी कर रहे हैं बच्चे, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनका बच्चा भी रामलीला में हिस्सा ले रहा था और हमारे फैकल्टी के बच्चे भी एक साथ रामलीला खेल रहे थे। यह है सद्भावना, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप अपनी जीवन यात्रा शुरू कर रहे हैं, परेशानियां आएंगी, पक्का आएंगी। जिन्होंने परेशानियों को झेलना सीखा, जिन्होंने परेशानियां झेली, जिनको उसको झेलना आ गया, उन्हीं का नाम इतिहास के पन्नों में आया है, उन्हीं का नाम आया है इतिहास के पन्नों में। जीवन का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिस दिन उनको अपने जीवन का लक्ष्य उद्देश्य पता लगा, वो महात्मा गांधी हो गए। पौड़ी जनपद के तोली गांव में किशोरी धसमाना, जिस समय उनको अपने जीवन का लक्ष्य पता लगा, वो स्वामी राम बन गए। अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढिए। इंसान प्रेम की उत्पत्ति है। माता पिता ने प्रेम किया तो हम पैदा हुए। इंसान हिंसा कैसे कर सकता है? जानवरी प्रवृत्ति कैसे आ सकती है? इसलिए अंदर झांकने की आवश्यकता है। कृपया ध्यान रखना, विद्वान राम भी थे और विद्वान रावण भी थे। रावण को ही नहीं रखता अपने बच्चे का नाम। राम और रावण में फर्क क्या था? रावण को अपने ज्ञान का अभिमान था, रावण को ज्ञान का अभिमान था, और रामचंद्र जी को अभिमान का ज्ञान था। फर्क इतना ही था। अभिमान पतन का कारण है। अब जहां रहें, अभिमान मत रखना। हेल्प करना प्लीज। थाउजेंड्स ऑफ पीपल नीड आवर हेल्प। दैट्स हाउ वी विल मेक दिस मां भारतीय विकसित भारत। एक छोटा सा थॉट जिसकी वजह से संस्थान बना है। ध्यान रखना, अच्छी सोच का अच्छा परिणाम है। संगति का असर पड़ता है। शराबी कबाबी के साथ बैठोगे तो वही बनोगे, संत पुरुष के साथ बैठोगे तो संत बनोगे। अच्छा काम करिए। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे दो सांसद हमारे मध्य हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी शिक्षाओं का जिम्मे जिनके पास है, धन सिंह रावत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पुष्कर, जो ज्योतिष विज्ञान जानते हैं, एक पुष्कर नवांश, ऐसा नवांश है कि उसकी जो है, उसकी पढ़िए उसके बारे में। तो पुष्कर नवांश, हमारे मुख्यमंत्री जी आज हमारे मध्य में, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, 1.5 मिनट की मीटिंग हुई थी मेरी, जब मैं निमंत्रण देने गया था। 1.5 मिनट। मैंने कहा भाई साहब आपको आना है। कह रहे मैं पक्का आऊंगा। तो आपके प्रकाश तो पूरे जगत में फैल रहा है, आपका प्रकाश पूरे जगत में फैल रहा है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार पुनः सभी डिग्री रेसिपिएंट को, आपके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भगवान आशुतोष का दिन है, महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। Thank you, sir. I'll now request the guest of honor, the Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji, to bless the recipients.